Yes, screen is visible. Screen is visible, students. Yes, ma'am. Okay. Yes. Yes. Okay. Yes. What is .NET framework? Please फटाक से मुझे आंसर दे दो जल्दी से. चलो हमको आज न्यू CLR पढ़ना है. Today we will learn the CLR in detail. Yes. जल्दी से. What is .NET framework? It is a language. .NET is an open source framework. Yes. Okay. It is a language. Yes or no? Yes. No, ma'am. No. Okay. It is not a language. .NET is not a language. It is a platform or framework. Okay. Okay. Which type of application we can create under the .NET framework? Desktop, Hmm. phone, Then yes. चलो जल्दी से बताओ. We learn in the yesterday's lectures ना which type of application we can create. Web application, okay, Windows application, web services, class libraries, okay, then mobile applications. All these types of application we can create. Okay, yes. Then how many languages .NET framework supports? कितना language support करते हैं .NET framework? ma'am, 11. No, More .NET. than 60, ma'am. Yes, more than 60, but out of that 11 languages are developed by the Microsoft itself. Okay, and another जो remaining languages है, that is supported by the .NET framework but not developed by the Microsoft. Okay, yes. In our subject, which language we will learn? In our subject, C Sharp. C Sharp. Yes. Sure, sure. Yes, very good. Yes. Okay, तो ये basic concept है, ये दिमाग में रख के चलो कि in the .NET framework we can use multiple languages, we can create many type of application. But in our subject, in our subject we will learn only C Sharp language. ठीक है, C Sharp language ही हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि हमारे syllabus में है इसलिए. Okay, yes. Now yesterday we had. हाँ बोलो. मैम C Sharp लैंग्वेज यूज करके अपन एप्लीकेशन ड्रॉ मैम कर सकते हैं ना? Yes, any type of application using this C Sharp language you can create web application, you can create Windows application, you can create web services, you can create libraries, you can create Android mobile application also using C Sharp language. Okay. Okay, ma'am. Yes. C Sharp language use करके you can create any type of application. जो हमने देखा वो applications के types, आप कोई भी types create कर सकते हो using the C Sharp language. VB language use करके भी कर सकते हो. You can also use C++ language. You can also use JavaScript language. जो आपको language आ रहा है वो, अगर आप अभी हम लोग C Sharp करें तो C Sharp से भी आप कर सकते हो. ठीक है, अगर आपको previous semester का कोई Python आ रहा है तो you can also use the Python. अगर आपका जावा पे कंसेप्ट, जावा में अच्छा कमांड है जावा लैंग्वेज पे, तो यू कैन ऑल्सो यूज जावा अंडर द .NET फ्रेमवर्क. ओके, अंडर द .NET फ्रेमवर्क जावा यू कैन यूज द जावा. अलग से आप प्लेटफॉर्म एडवांस जावा एंड्रॉइड में कर सकते हो, बट अंडर द .NET फ्रेमवर्क यू कैन ऑल्सो यूज द जावा लैंग्वेज. ठीक है, बट वो कहाँ पे करोगे? अंडर द .NET फ्रेमवर्क में, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में. यस. विच सॉफ्टवेयर वी हैव टू डाउनलोड फॉर यूजिंग द .NET फ्रेमवर्क? कौन सा सॉफ्टवेयर हमको डाउनलोड करना है, यूज करना है .NET फ्रेमवर्क के लिए? Visual Studio. Yes, very good. Microsoft Visual Studio, that is also developed by the Microsoft. Okay, Microsoft Visual Studio, it is freely available है, free नहीं है. You can get the 1 month trial version and then after you can renew it. आप उसको कर सकते हो. ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको setup जो है I will send the setup in the Google Classroom. ठीक है. Okay, in the last lecture we had started the .NET framework. About the .NET framework, again I am repeating, the .NET framework or that .NET platform is a collection of different tools, different applications, different languages, class libraries. Okay, so in this figure you can see the .NET framework provide the different features like CLR. CLR is a function. Okay, it is provided by the .NET framework. .NET framework also provide the class libraries for different languages. ADO.NET is used for the database. You can also create the database inside the .NET framework and you can connect with any languages के साथ आप उसको directly connect कर सकते हो. So आपको अलग से external database create करने की जरूरत नहीं है. .NET framework ने .NET के लिए भी फीचर्स प्रोवाइड किया है. फॉर एग्जांपल इफ यू विल मेक द रजिस्ट्रेशन पेज, ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन पेज बना रहे हो, सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो क्लिक
जैसे क्लिक करोगे तो आपका डेटा जो डेटाबेस में स्टोर हो जाना चाहिए. तो डेटाबेस का जो फैसिलिटी इट इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय द .NET फ्रेमवर्क. ओके, तो वी कैन आल्सो क्रिएट द डेटाबेस अंडर द .NET फ्रेमवर्क. आप SQL बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो जो है इट इज सपोर्टेड द SQL सर्वर वो बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करता है. तो अगर आपको एक्सटर्नल डेटाबेस यूज नहीं करना है तो यू कैन यूज इनबिल्ट डेटाबेस विद इन दी माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में आप यूज कर सकते हो. मैं आपको दिखाऊंगी. तो वो डेटा एंड XML है, उसको ADO.NET हम लोग बोलते हैं. देन वेब सर्विसेज, वेब फॉर्म्स, विंडोज फॉर्म, ये लेयर में सारा एप्लीकेशन जो है हम लोग लिख सकते हैं. बट दिस इज अ फिगर, ये फिगर है तो इसमें सारा शो नहीं किया है. तो दिस लेयर कंटेन्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन जो हमने पढ़ा. देन कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन. ओके, अंडर द .NET फ्रेमवर्क वी कैन यूज एनी लैंग्वेजेस. तो हर एक लैंग्वेजेस .NET फ्रेमवर्क पे रन हो रहा है. तो .NEट फ्रेमवर्क ने क्या किया है, कॉमन लैंग्वेज क्रिएट किया है, MSIL माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज के. .NEट फ्रेमवर्क को वो वाला लैंग्वेज समझता है. ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ में आएगा. ओके, नाउ फर्स्ट कंपोनेंट वी विल लर्न कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, CLR. Okay, CLR, the first component today we will learn in detail about the CLR, common language runtime. What is CLR? The function of CLR is converts your source code. Okay, converts the source code into the native code. Source code मतलब आपका प्रोग्राम, जब आप प्रोग्राम लिखोगे कोई भी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करेगा नेटिव कोड, मतलब मशीन कोड. नेटिव कोड एंड मशीन कोड सेम है. अगेन रिपीट करियो, सोर्स कोड एंड प्रोग्राम. जो प्रोग्राम लिखते हो इट इज योर सोर्स कोड. ओके, जो प्रोग्राम आप लोग टाइप करते हो कोई भी लैंग्वेज में, प्रोग्राम आपका क्या हो गया, सोर्स कोड. तो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम का मेन क्या टास्क है कि इट कन्वर्ट्स द प्रोग्राम इनटू द नेटिव कोड, मशीन कोड. व्हाई मशीन कोड? बिकॉज कंप्यूटर को क्या समझता है, मशीन कोड ही समझता है. ओके, तो हर एक कंपाइलर का क्या काम क्या होता है, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना. आप लोग जो इंटीजर A B लिखते हो तो कंप्यूटर को AB नहीं समझेगा. ठीक है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज. ओके, मशीन लैंग्वेज ही कंप्यूटर को समझता है. तो व्हाट इज द टास्क, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंपाइलर? इट कन्वर्ट्स सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है. तो वो फंक्शन प्रोवाइड करने के लिए .NET ने क्या प्रोवाइड किया है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, CLR. ओके, इट कन्वर्ट्स द प्रोग्राम इनटू नेटिव कोड. ओके, then another functions भी है CLR का. CLR एक्सेप्शन हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग भी करेगा, मेमोरी मैनेजमेंट भी करेगा, गार्बेज कलेक्शन जो है वो भी करेगा. यू नो व्हाट इज अ गार्बेज कलेक्शन? व्हाट इज अ गार्बेज कलेक्शन? व्हाट इज अ गार्बेज कलेक्शन? गार्बेज कलेक्शन मतलब क्या? व्हाट इज द गार्बेज कलेक्शन? ये वर्ड सुना होगा ना, गार्बेज कलेक्शन. C++ जो लैंग्वेज है आपका, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा गार्बेज कलेक्शन. मोस्टली हर एक प्रोग्रामिंग जो उप्स वाला लैंग्वेज जो है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो जावा में है, जावा भी सपोर्ट करता है गार्बेज कलेक्शन. देन C++ में भी आई थिंक है गार्बेज कलेक्शन का कंसेप्ट. मैम रैंडम वैल्यूज रहता है उसमें. रैंडम वैल्यूज रहता है. गार्बेज कलेक्शन में रैंडम वैल्यूज रहेगा. यस, हाँ, ओके, ठीक है, चलो रैंडम वैल्यूज रहेगा. तो बट क्या उसका क्या काम है, व्हाई द रैंडम वैल्यूज? क्या यूज है उसका, क्यों प्रोवाइड करेगा, क्या हम लोग उसका यूसेज क्या है गार्बेज कलेक्शन का? सी स्टूडेंट्स, यू आर इन नाउ इन 5th सेमेस्टर. आपको 5th सेमेस्टर आप लोग हो तो यू शुड नो द बेसिक जो टर्म्स जो है IT रिलेटेड, जितने भी बेसिक टर्म्स है, नेटिव कोड हो गया, सोर्स कोड हो गया, गार्बेज कलेक्शन, व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट, व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग. ठीक है, कंसेप्ट सेम है. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला ये सारे कंसेप्ट सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम है. ओनली उसका सिंटैक्स चेंज होगा कि उसको हम लोग अप्लाई कैसे करें पर्टिकुलर लैंग्वेज में. जावा में आपने जो एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा वही मैं आपको पढ़ाऊंगी .NET में. मीनिंग वही है. व्हाट इज एक्सेप्शन? एक्सेप्शन मतलब एरर, हाउ टू हैंडल दी एरर, एंड एरर को कैसे हैंडल करना है. ट्राई कैच वही है, बट C# में क्या चेंज होगा, उसका सिंटैक्स चेंज होगा, थोड़ा डिफरेंस होगा सिंटैक्स. अदरवाइज उसका जो मीनिंग है, द मीनिंग विल बी सेम. मेमोरी मैनेजमेंट, व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट? मतलब क्या जो एक्स्ट्रा जो मेमोरी है या तो फिर जो अनयूज मेमोरी है उसको हैंडल करना. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट. सपोज कोई वेरिएबल है उसका हम लोग यूज नहीं करे, ठीक है, यूज नहीं करे उसका मेमोरी को, तो उसको रिमूव कर देना, उसको क्या हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट. मेमोरी में स्पेस क्रिएट करना, मेमोरी मैनेजमेंट. तो ये कंसेप्ट कोई और लैंग्वेज में भी सेम है, C# में भी कंसेप्ट तो सेम ही है. ठीक है, तो यू शुड नो
प्लीज नाउ आपका जो रीडिंग जो है अभी रीडिंग थोड़ा इंक्रीज करो सारे सब्जेक्ट्स में. ये बेसिक यू शुड नो. Interoperability, it provides security. Type safety, interoperability, portability. You know what is portability, interoperability. आपने आई थिंक जावा के उसमें ये पढ़ा होगा, ये सारे वर्ड्स जावा के फंक्शंस है ना. ये जब जावा स्टार्ट किया होगा तब आपने पढ़ा होगा. अगेन एंड अगेन मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगी रिपीट करवाने के लिए. यू शुड नो. जैसे वर्ड पढ़ा टाइप सेफ्टी, तो यू शुड आपको दिमाग में आना चाहिए व्हाट इज टाइप सेफ्टी. इंटरऑपरेबिलिटी, तो वो क्या है. पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी मतलब क्या. ओके तो ये सारा वर्ड्स अभी आपको पता होना चाहिए. आज क्या करोगे, ये जितने भी वर्ड्स आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसको नोटबुक में एक लाइन में लिख के रखो, तो आपको याद रहेगा लाइफ टाइम. ज्यादा बड़ा बड़ा डिटेल में नहीं लिखना है. ओनली राइट इन अ सिंगल लाइन इन योर नोटबुक फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर योर नॉलेज. कंपनी में चले गए, पूछे तो व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट, व्हाट इज गार्बेज कलेक्शन. अगर आप पूछोगे नहीं मेरा एरिया डॉट नेट है तो वो पूछेंगे द डॉट नेट में गार्बेज कलेक्शन का फैसिलिटी है, व्हाट इज गार्बेज कलेक्शन. ओके तो ये कॉमन क्वेश्चन है, यू शुड नो. ये सब पता होना चाहिए आप लोगों को प्लीज. यस. हाउ दिस सेल, क्योंकि डॉट नेट जो है इट इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट. हमको इसमें टाइम कम पड़ेगा क्योंकि हम लोग इसमें प्रैक्टिकल्स भी करेंगे साइड बाय साइड. ठीक है, तो जितना थियरी है जल्दी खत्म करके मुझे प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है. बेसिक हम लोग कंप्लीट करेंगे थियरी, देन वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल्स. यस. देन हाउ द CLR वर्क. ओके, मेन CLR का काम क्या है, सोर्स कोड को, दिस इज अ सोर्स कोड, सोर्स कोड को कन्वर्ट करेगा नेटिव कोड, मशीन कोड में. ओके बट जो वो कन्वर्जन प्रोसेस जो है, ठीक है, वो कन्वर्जन प्रोसेस ऐसा है कि पहले सोर्स कोड जो है उसको लैंग्वेज कंपाइलर कन्वर्ट करेगा MSIL कोड में, देन जस्ट इन टाइम कंपाइलर कन्वर्ट करेगा नेटिव कोड में. मैं एक्सप्लेन करी उसको. बट मेन CLR का काम क्या है, सोर्स कोड को कन्वर्ट करना इनटू द नेटिव कोड, इनटू द मशीन कोड. व्हाई, बिकॉज मशीन कंप्यूटर सिस्टम अंडरस्टैंड ओनली मशीन कोड. ओके, मशीन कोड ही, मशीन लैंग्वेज ही कंप्यूटर को समझता है. तो कोई भी लैंग्वेज हम लोग जब हमारे सिस्टम में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है तो वो लैंग्वेज का कंपाइलर क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, देन उसका आउटपुट हमको शो होता है आउटपुट विंडो में. दैट इज अ बेसिक प्रोसेस फॉर ऑल द लैंग्वेजेस. हर एक लैंग्वेज में ऐसे ही होता है. ठीक है, तो CLR क्या करेगा, सोर्स कोड को नेटिव कोड में कन्वर्ट करेगा. बट कैसे करेगा. ओके तो दैट उसका प्रोसेस है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, सोर्स कोड. फॉर एग्जांपल अंडर द .NET फ्रेमवर्क, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में मैं मेरा एप्लीकेशन, आई एम क्रिएटिंग माय एप्लीकेशन यूजिंग द C# लैंग्वेज. ओके तो मेरा ऑब्वियसली मेरा सोर्स कोड जो है वो क्या होगा, मेरा सोर्स कोड जो होगा वो कौन से लैंग्वेज में होगा, C# लैंग्वेज में होगा, क्योंकि मैं एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करी हूँ C# लैंग्वेज यूज करके. तो क्या होगा, जो सोर्स कोड है जो मैंने लिखा है C# लैंग्वेज यूज करके, तो C# लैंग्वेज का कंपाइलर क्या करेगा, लैंग्वेज कंपाइलर. यहाँ पे क्या लिखा है, लैंग्वेज कंपाइलर इज गिवन. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज कंपाइलर. लैंग्वेज कंपाइलर क्या करेगा, मतलब C# अगर मैं लैंग्वेज यूज करी हूँ तो C# लैंग्वेज का कंपाइलर कन्वर्ट करेगा सोर्स कोड को इनटू द MSIL कोड, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड. What is the full form of MSIL? Microsoft Intermediate Language Code. It is a independent code. कौन सा कोड है, इंडिपेंडेंट कोड. ठीक है, .NET फ्रेमवर्क अंडरस्टैंड ओनली MSIL कोड. .NET फ्रेमवर्क को क्या समझता है, MSIL कोड. ओके, इन दैट अंडर द .NET फ्रेमवर्क वी कैन यूज any type of languages, but .NET framework understand only MSIL code. तो language compiler क्या करेगा, the language compiler converts the source code into the MSIL code. That is the independent code. वो independent code है. Then suppose for example you are creating your application using the Java language under the .NET framework. तो Java language का जो compiler है, the compiler of the Java language will convert your source code into the MSIL code. Okay, for example अगर if you are writing your code, if you are making your application using the Python language under the .NET framework, तो Python language का जो compiler है, okay, Python language का जो compiler है वो क्या करेगा, Python में जो आपने प्रोग्राम लिखा है उसको कन्वर्ट करेगा into the MSIL कोड में. क्लियर. ओके, जो क्योंकि .NET क्या है, मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है, तो जो मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है वो लैंग्वेज का कंपाइलर क्या करेगा, सोर्स कोड मतलब आपका जो प्रोग्राम है उसको किसमें कन्वर्ट करेगा, MSIL कोड में. माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड, IL, इंटरमीडिएट, MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट, I मतलब इंटरमीडिएट, L मतलब लैंग्वेज, इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड. .NET को वो कॉमन लैंग्वेज समझता है. फॉर एग्जाम्पल ओवरऑल इंडिया में हिंदी सबको आता है. ठीक है, हिंदी एवरीवन नोज हिंदी.
हर एक स्टेट का अपना खुद का एक लैंग्वेज है, हर एक स्टेट का अपना खुद का लैंग्वेज है। बट अगर आप एक स्टेट में सेकंड स्टेट में जा रहे हो, ठीक है, आप महाराष्ट्र गुजरात में आओगे तो यू डोंट नो गुजराती, हाँ, बट गुजरात के लोगों को हिंदी भी पता है, आपको भी हिंदी पता है, तो यू कैन कम्युनिकेट विद यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ हिंदी। तो सेम वैसे ही अंडर द डॉटनेट फ्रेमवर्क बहुत सारे लैंग्वेजेस सपोर्ट होता है, ठीक है, बट डॉटनेट को कौन सा समझता है, MSIL। तो वो जो हर एक लैंग्वेज का कंपाइलर क्या करेगा, अपने जो प्रोग्राम लिखा है, सोर्स कोड लिखा है, उसको कन्वर्ट करेगा MSIL कोड में। क्लियर? क्लियर? यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। यस, ये स्टेप समझ में आ गया? ओके, Ma'am. हमको नहीं करना है, ठीक है, ये सारा प्रोसेस वी विल नॉट डू ऑल दिस प्रोसेस, ये सारा प्रोसेस हम लोग नहीं करेंगे, बट ये बैकग्राउंड प्रोसेस है। हम लोग तो सिंपली क्या करेंगे, we will open the Microsoft Visual Studio, we will choose our language, we will choose our application and direct writing the code। जो आपने लैंग्वेज चूज किया उसमें आप आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखोगे, कोडिंग करोगे, आपका आउटपुट डिस्प्ले होगा। हाँ, बट वो आउटपुट डिस्प्ले कैसे हो रहा है, ठीक है, वो कैसे आपका बैकग्राउंड, दिस इज अ बैकग्राउंड प्रोसेस। ये डॉटनेट का अपना खुद का CLR जो उसने प्रोवाइड किया, CLR का ये काम है, ये हम लोग नहीं करेंगे, ये अपने आप हो जाएगा। हम तो जस्ट क्या करेंगे, अपना सोर्स को, अपना जो प्रोग्रामिंग है, सपोज फैक्टोरियल के लिए या तो कोई वेबसाइट आप बना रहे हो, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज में, तो उसको रन करोगे, डायरेक्टली आपका आउटपुट डिस्प्ले होगा। हाँ, बट डॉटनेट फ्रेमवर्क में CLR हर एक लैंग्वेजेस को ऐसे हैंडल करता है, ऐसे वो कन्वर्ट करता है नेटिव कोड में, तो वो आपको प्रोसेस में एक्सप्लेन करी। ओके, ठीक है, तो MSIL कोड, ठीक है, MSIL कोड इज अ इंडिपेंडेंट कोड। डॉटनेट अंडरस्टैंड, डॉटनेट फ्रेमवर्क को कौन सा समझता है, कौन सा लैंग्वेज समझता है, MSIL। बट डॉटनेट फ्रेमवर्क बहुत सारे लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है, तो हर एक लैंग्वेज का कंपाइलर विल कन्वर्ट सोर्स कोड को MSIL कोड में वो कन्वर्ट करेगा। ओके, देन MSIL कोड क्या होगा, एंड हमारे सिस्टम जो है, हमारा जो मशीन है, जो कंप्यूटर है या तो लैपटॉप है जिस पे आप रन करोगे, उसको कौन सा लैंग्वेज समझता है, मशीन कोड। उसको क्या समझता है, मशीन कोड। तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर, ओके, जस्ट इन टाइम कंपाइलर जो है, JIT कंपाइलर क्या करेगा, उसके बाद MSIL कोड जो था उसको कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में। कौन करेगा, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ओके, MSIL कोड जो जनरेट हुआ था, जो लैंग्वेज कंपाइलर ने कन्वर्ट करके हमको दिया था सोर्स कोड को, उसको JIT compiler will convert into the native code, machine code, then after your output will be displayed to you on the screen। okay, so this is a whole process के how your output will be display। आप लिखोगे कोडिंग, आपको आउटपुट मिलेगा, बट बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस होके देन आपका आउटपुट डिस्प्ले होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये हम लोग नहीं करेंगे, दिस इज ओनली कंसेप्ट you should know कि how these CLR work। आपको क्वेश्चन होगा कि डॉटनेट सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेजेस, तो उसका आउटपुट कैसे डिस्प्ले होगा। ओके, क्योंकि मैम तो बोल रही है कि आप C# में लैंग्वेज एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो यूज पाइथन, यू कैन ऑल्सो यूज जावा, यू कैन ऑल्सो यूज जावास्क्रिप्ट, बट कैसे आउटपुट कैसे डिस्प्ले होगा। तो डॉटनेट फ्रेमवर्क जो है उसने फैसिलिटी प्रोवाइड की है CLR का, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, कि क्या करेगा, उससे कोई भी लैंग्वेज में आप लोग लिखोगे तो आपका आउटपुट डिस्प्ले होगा। तो बैकग्राउंड में ऐसे बहुत प्रोसेस होता है। कंपाइलर करेगा, कन्वर्ट करेगा सोर्स कोड को MSIL में, देन MSIL कोड को जस्ट इन टाइम कंपाइलर, कौन सा कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, JIT कंपाइलर, जैसे JVM, जावा वर्चुअल मशीन आपने पढ़ा जावा में, कि जो जावा भी इंडिपेंडेंट ही है, तो उसमें भी JVM कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, तो इसमें JVM की जगह पे क्या है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर है। ओके, जस्ट इन टाइम कंपाइलर है, it will be converted into the native code। So this is a process of working of CLR, common language runtime। okay, and what is a metadata? okay, यहाँ पे एक अनदर वर्ड दिया हुआ है metadata। metadata मतलब कि आपने DBMS में पढ़ा कि डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी कोड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जावा का जो सोर्स कोड था उसको कन्वर्ट किया MSIL कोड में, तो उसका जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है कि कौन सा जावा का वर्जन यूज किया, कौन सा लैंग्वेज है, क्या क्या वेरिएबल्स वगैरह यूज किया है, MSIL का जो पूरा इन्फॉर्मेशन डिटेल डिस्क्रिप्शन स्टोर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाडेटा बोलते हैं। डेटा अबाउट द डेटा, डिटेल डिस्क्रिप्शन। तो वो जस्ट उन्होंने दिया हुआ है, वो प्रोसेस का पार्ट नहीं है, प्रोसेस का पार्ट उसका फ्लो यही है, the source code will be converted into the MSIL code by the language compiler। okay, then MSIL code is converted into the native code by just in time compiler। okay, JIT compiler। clear how the CLR work, common language runtime, common language runtime, CLR। okay, what is आपको अगर क्वेश्चन आ रहा है what is CLR, तो you will write the CLR convert source code into the native code, मतलब मशीन कोड। नेटिव कोड मतलब मशीन कोड, एंड सोर्स कोड मतलब योर प्रोग्राम। देन हाउ, अभी तो थियरी पेपर आई थिंक नहीं है, आप लोग का ऑनलाइन ही होगा। थियरी अगर है, अगर पूछता है
या तो फिर इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन आपको आता है कि हाउ दी CLR कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू द नेटिव कोड में वो कैसे कन्वर्ट करेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक लैंग्वेज का अपना कंपाइलर होता है, वो कंपाइलर क्या करेगा, सोर्स कोड को MSIL में कन्वर्ट करेगा, देन जस्ट इन टाइम कंपाइलर जो MSIL कोड है उसको नेटिव कोड में कन्वर्ट करके देगा। एंड व्हाट इज MSIL? माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ये जो शॉर्ट फॉर्म्स जो है वो MCQ में आ सकता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MSIL, या तो व्हाट इज MSIL डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, तो वैसे टाइप का जो क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस है आपको आएगा MCQ में, तो यू शुड रिमेंबर, नोट डाउन करते जाओ प्लीज। इन माय लेक्चर्स कम विथ योर नोटबुक एंड पेन, ठीक है, अच्छे से अलग से नोटबुक ही बना दो, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स जो है आपको नोट डाउन करते जाना है, ठीक है। जो मैम ने बोला है वो भी, प्लस जो आपको खुद को लग रहा है कि नहीं ये मुझे लिख के रखना है, तो प्लीज उसको लिख के रखो, क्योंकि अगर आप प्रोजेक्ट बनाओगे, जब इम्प्लीमेंटेशन करोगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो .NET अगर यूज करोगे तो ये आपको काम आएगा ये सारी चीजें, प्लस इंटरव्यू के लिए भी काम आएगा जब जॉब के लिए जाओगे। ओके, तो दिस इज अ सेलर का एक काम है सोर्स कोड को नेटिव कोड में कन्वर्ट करना। बाकी जो है सेलर कॉल्स वेरियस प्रीडिफाइंड फंक्शंस ऑफ .NET फ्रेमवर्क टू अलोकेट एंड डीअलोकेट मेमोरी .NET ऑब्जेक्ट्स। ओके, मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी मैनेज करना, जो वेरिएबल्स यूज में नहीं है, ठीक है, तो उसको रिमूव कर देना, या तो उसका जो मेमोरी उसको असाइन किया उसको फ्री कर देना, ठीक है, अलोकेट करना मेमोरी, डी अलोकेट करना। अगर फॉर एग्जांपल अगर वेरिएबल हम लोग डिलीट करें तो उसको जो मेमोरी असाइन किया था वो मेमोरी उसको मेमोरी में से निकाल देना, डी अलोकेट करना, ठीक है, तो वो भी सेलर का ही काम है। सेकंड जो फंक्शन है सेलर का, दैट इज कोड एक्सेस सिक्योरिटी। ओके, CLR allows, common language runtime allows access to code to perform only those tasks for that it has permissions. Okay, जब हम लोग .NET framework यूज करेंगे, जो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो व्हेन वी विल यूज, तो आपको समझ में आएगा बहुत सारे फाइल्स ऐसा है कि जिसको वी कैन नॉट एक्सेस दैट फाइल्स, जो इनबिल्ट फाइल्स है कि जिसको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमको वो परमिशन नहीं दिया है। तो कोड एक्सेस सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं .NET फ्रेमवर्क के, जो पब्लिक्स है वही हम लोग यूज कर सकते हैं, इनबिल्ट उनका जो है अवेलेबल फाइल्स इनबिल्ट अवेलेबल, उसको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। आप परमिशन भी, यूजर का परमिशन भी आप उसमें सेट कर सकते हो, ठीक है। पर्टिकुलर फाइल पेज जो है उसको अगर ऑथेंटिकेशन पासवर्ड देना है वो भी आप सेट कर सकते हो। ये जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको समझ में आएगा, अभी के लिए जस्ट याद रखो। गार्बेज कलेक्शन, गार्बेज कलेक्शन मैंने आपको पूछा व्हाट इज द गार्बेज कलेक्शन, आप आंसर नहीं दे पाए थे। गार्बेज कलेक्शन इज यूज्ड टू प्रिवेंट मेमोरी लीक्स और होल्स। Garbage collector of CLR automatically determines the best time to free the memory which is allocated to an object for execution. Memory management concept मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में आई थिंक पढ़ाया था, ठीक है, उसमें बेस्ट फिट, फर्स्ट फिट, ओके, एंड ऐसा 3 टाइप्स का वो था, स्टेप्स था कि अगर मेमोरी बीच बीच में अवेलेबल है तो उसको कैसे कंटिन्यूस करना, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन, नॉन कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशंस, ठीक है। जो मेमोरी फ्री है, हॉल्स में फ्री है, उसको कैसे रिमूव करके एक लार्ज मेमोरी बनाना, उसको गार्बेज कलेक्शन, जो अनयूज मेमोरी है उसको कैसे यूज मेमोरी में कन्वर्ट करना, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गार्बेज कलेक्शन। यूज टू प्रिवेंट मेमोरी लीक्स और होल्स। ओके, क्योंकि आपको पता है मेमोरी कैसा होता है, मेमोरी मतलब उसको डिवाइड किया हुआ रहता है, ठीक है, साइज रहता है, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन मेमोरी का। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल डिक्लेयर किया वो कोई तो 205 लोकेशन में, सेकंड वेरिएबल डिक्लेयर किया वो 206 लोकेशन पे, देन 207 लोकेशन पे। अगर हमने 6 वाला जो वेरिएबल उसको रिमूव कर दिया, देन 9 वाला रिमूव करे, तो वो जो स्पेस अवेलेबल होता है मेमोरी का, ठीक है, उसको कैसे कंबाइन करना, उसको कैसे यूज में लेना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गार्बेज कलेक्शन। तो इट इज द फंक्शन ऑफ CLR ये भी गार्बेज कलेक्शन भी करता है। अभी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ेंगे डिटेल में, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपको आपकी तरीके से उसको याद रख के उसको नोट डाउन करके रखना नोटबुक में, ठीक है। नेक्स्ट जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन, ठीक है, ये हमने देखा जस्ट इन टाइम, JIT स्टैंड फॉर जस्ट इन टाइम, ये हमने देखा वो क्या करेगा, कन्वर्ट्स करेगा MSIL कोड को टू दी मशीन कोड। ये हमने देखा कंपाइलर का वर्किंग में, देखा जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करेगा, MSIL कोड को कन्वर्ट करेगा नेटिव कोड में। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ CLR का ही वो पार्ट है JIT। क्लियर? CLR क्लियर, हाउ द CLR वर्क्स एंड CLR और क्या क्या करेगा? Yes, ma'am. ओके, यस। अगर फास्ट जा रहा है तो यू कैन अगेन सी दिस रिकॉर्डिंग, मैं ये रिकॉर्डिंग जो है प्रोवाइड कर दूंगी आपको, मतलब लिंक तो मैम हम लोग मैम को दे रहे हैं, आई थिंक मैम ने अभी तक आपको शेयर नहीं किया, मैम विल शेयर विथ यू ऑल दी रिकॉर्डिंग लेक्चर्स का लिंक, हर एक सब्जेक्ट का, तो आप उसमें जाके
अगेन अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आया लेक्चर्स में, तो आप रिकॉर्डिंग अगेन देख सकते हो, आप मुझे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। यस, द नेक्स्ट इज फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। डॉटनेट फ्रेमवर्क जो है उस नेक्स्ट जो है वो क्या प्रोवाइड, नेक्स्ट उसका क्या है, बेस क्लास लाइब्रेरी। ओके, लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है। एक तो डॉटनेट फ्रेमवर्क ने क्या फीचर्स प्रोवाइड किया, CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, ये हमने देखा। देन डॉटनेट फ्रेमवर्क जो है अनदर फंक्शंस हमको प्रोवाइड करा है, बेस क्लास लाइब्रेरी। ओके, क्लास लाइब्रेरीज उसको, और यू कैन से फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी आप उसको बोल सकते हो, या तो बेस क्लास लाइब्रेरी आल्सो यू कैन से। फ्रेमवर्क और बेस क्लास लाइब्रेरी आपको जो भी बोलना है यू कैन से, ठीक है, बोथ आर सेम वर्ड। It is a standard library that is collection of thousands of classes and used to build an application. The base class library is the core of the framework class library and provide basic functionalities. ठीक है, हर एक different languages इसमें supported है, तो हर एक language में जितने भी class libraries available है वो भी .NET provide करता है, thousands of classes वो provide करता है। For example अगर C language है तो printf scanf वो किसमें कौन से हेडर फाइल में है, तो दैट इज वन टाइप ऑफ क्लास। तो वैसे हम लोग तो बहुत सारे लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं इन डॉटनेट फ्रेमवर्क। तो डॉटनेट फ्रेमवर्क हर एक लैंग्वेज के लिए क्लासेस इनबिल्ट फंक्शंस जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है उसने, ठीक है। तो डॉटनेट सपोर्ट्स द कलेक्शन ऑफ द थाउजेंड ऑफ क्लासेस। ओके, यू नो व्हाट इज द क्लासेस। ओके, हेडर फाइल्स जिसमें हम लोग स्टोर करके रखते हैं इनबिल्ट फंक्शंस जो अवेलेबल्स है, जो आप उसको यूज करते हो, हर एक लैंग्वेज में रहता है। फॉर एग्जांपल मैथ का कोई फंक्शन यूज करना है तो यू विल डिफाइन द मैथ हेडर फाइल, क्या करते हो, मैथ हेडर फाइल डिफाइन करते हो, ठीक है। तो वो इनबिल्ट क्लास अवेलेबल है। तो जो भी लैंग्वेज आप लोग यूज करोगे उसमें जो भी इनबिल्ट फंक्शंस है, जो क्लासेस है, वो डॉटनेट फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है। ओके, तो वही है, उसमें उतना कुछ मेन है नहीं। वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एक्चुअल इज विंडोज फॉर्म। विंडोज फॉर्म्स है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग वीबी यूज करके फॉर्म बना रहे हो, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन आप लोग बना रहे हो, विंडोज एप्लीकेशन बना रहे हो, तो यू कैन मेक दी विंडोज फॉर्म। रेडीमेड फॉर्म्स अवेलेबल है, तो वो फॉर्म्स रेडीमेड अवेलेबल है, तो वो कौन से क्लास में है, विंडोज फॉर्म में है, ठीक है। ये सारा प्रैक्टिकल का पार्ट है। व्हेन वी विल स्टार्ट दी प्रैक्टिकल मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि क्लास लाइब्रेरीज कहाँ पे है, कैसे आप उसको यूज कर सकते हो, कैसे उसको एक्सेस करना है, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। अभी जस्ट याद रखो कि हर एक क्लास लैंग्वेज के लिए डॉटनेट प्रोवाइड्स दी, डॉटनेट सपोर्ट्स दी थाउजेंड ऑफ क्लासेस। ओके, ASP.NET नेक्स्ट जो है दैट इज फिगर देखो, ADO.NET डेटा XML, ठीक है। ADO.NEट बाद में, ये वाला है कि वी कैन क्रिएट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस। तो नेक्स्ट उसका जो है ASP.NET is a web framework designed and developed by the Microsoft. It is used to develop websites, web applications and web services. ठीक है, वो ASP.NET categories में आता है। It provides the fantastic integration of HTML, CSS, JavaScript. It was released, वही है। Okay, ASP.NET मतलब you can create your web applications. Okay, web applications जो आप create करते हो, website जो create करते हो, that is the ASP.NET. different types of application you can create, वो उन्होंने बताया। नेक्स्ट जो है functions provided by the .NET framework, that is ADO.NET database. You can create the database. ADO का फुल फॉर्म है ActiveX Data Object। ये हर एक चीज के लिए we have the different units। ADO.NET के लिए पूरा यूनिट 4 हमारे पास है, ये ASP.NET का लिए यूनिट 2 या यूनिट 3 हमारे पास है, कि जिसमें हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कि हाउ टू क्रिएट एप्लीकेशंस, कैसे एप्लीकेशन क्रिएट करना है विद एग्जांपल के साथ। पूरा हर एक के लिए हमारे पास यूनिट्स अवेलेबल है। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में, डोंट वरी, अभी जस्ट याद रखो उसका क्या है। ADO.NET is used for database ActiveX Data Object. What is the full form of ADO? ActiveX Data Object. Okay, which is used to establish a connection between application and data sources. Okay, if you want to create database, आपको database create करना है, connectivity करना है database, तो उसके लिए कौन सा feature available है, ADO.NET. Using the ADO.NET, we can create our database and we can connect our database with our application under the .NET framework. जब आपका application बनाओगे उसमें ही उसको आप कनेक्ट कर पाओगे विद द डेटाबेस के साथ, ठीक है। तो वो ADO.NET है। तो ADO.NET consists of classes. Again, ADO.NET consists of classes that can be used to connect, retrieve, insert and delete the data. पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में कि हाउ टू यूज ADO.NET, कैसे यूज करना है, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, कनेक्टिविटी कैसे करना है, बट वो यूनिट 4 में है। नेक्स्ट MSIL कोड। व्हाट इज MSIL कोड? मैंने आपको बताया MSIL कोड, full form of MSIL code is Microsoft Intermediate Language Code, MSIL, Microsoft Intermediate Language Code. Okay, it is an independent code. Okay, क्या है वो? independent code है जो
हर एक लैंग्वेज का कंपाइलर है वो सोर्स कोड को कन्वर्ट करेगा MSIL कोड एंड .NET फ्रेमवर्क अंडरस्टैंड दी MSIL कोड। .NEट फ्रेमवर्क को कौन सा कोड समझता है? MSIL कोड, क्योंकि वी कैन यूज मल्टीपल लैंग्वेजेस अंडर दी .NET फ्रेमवर्क, बट .NEट फ्रेमवर्क को क्या समझता है? MSIL कोड। तो हर एक लैंग्वेज का कंपाइलर कन्वर्ट करेगा सोर्स कोड को इनटू दी MSIL कोड में। ओके क्लियर? MSIL कोड तो आपको जस्ट फुल फॉर्म याद रखना है। And what is MS? It is a common language. Okay, it is a common language. It is understood by the .NET framework. Okay, converting the source code into the common language known as IL. You can also say उसको IL भी बोल सकते हो, intermediate language, और MSIL भी उसको बोल सकते हो, Microsoft intermediate language, और CIL भी बोल सकते हो, common intermediate language. Okay, ये 3 जो है वो सेम ही है, तो नोट डाउन करके रखो। IL मतलब इंटरमीडिएट लैंग्वेज, और MSIL मतलब माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, और CIL also you can use the word common intermediate language. IL मतलब इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ओके, तो आप कोई अगर आप नेट पे पढ़ रहे हो तो आपको कोई कहीं पे IL लिखा होगा, कोई पे MIL लिखा होगा, तो ऑल 3 आर सेम। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना कि ये क्या है, एक ही है, ये तीनों एक ही वर्ड है, इंटरमीडिएट लैंग्वेज। एंड इंटरमीडिएट लैंग्वेज क्या है? कॉमन है, इंडिपेंडेंट है, एंड .NET फ्रेमवर्क को वही समझता है। ओके, एंड देन जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करेगा? MSIL जो है उसको कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में। क्यों करना पड़ा? क्योंकि मशीन कोड कंप्यूटर को क्या समझता है? ओनली मशीन कोड। क्लियर? ओके, यस। नाउ कौन एक्सप्लेन करेगा CLR का वर्क? Who will explain? यस बताओ, CLR का वर्किंग कोई मुझे बताएगा? ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करोगे तो चलेगा। क्या समझ में आया आपको? हाउ द CLR वर्क? यस, मैम CLR मैम सोर्स कोड को नेटिव कोड में कन्वर्ट करता है मैम। ओके, कैसे करेगा? व्हाट इज द प्रोसेस? उसके इंटरमीडिएट स्टेप्स क्या है? सोर्स कोड जो सोर्स कोड है उसको लैंग्वेज कंपाइलर कंपाइल करके उसको इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड को ये करता है, कन्वर्ट करके देता है, और उसके बाद वो जो कोड है जस्ट इन टाइम कंपाइल करके उसके बाद नेटिव कोड में कन्वर्ट होता है मैम। यस, व्हाट इज नेटिव कोड? मैम मशीन्स को अंडरस्टैंड लैंग्वेज होता है वो वाला कोड, मशीन लैंग्वेज। ओके, नेटिव कोड मतलब क्या? मशीन को, सिस्टम को कौन सा कोड समझ में आता है? मशीन कोड समझ में आता है। ओके, यस, गुड, यस, मशीन कोड मैम। यस, वेरी गुड। ओके, फॉर एग्जांपल मैं जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज करी। ओके, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज करी तो क्या प्रोसेस होगा? कौन सा कंपाइलर उसको MSIL कोड में कन्वर्ट करेगा, जावा के सोर्स कोड को? जावा वर्चुअल मशीन। हाँ, ओके, मतलब जो जावा का कंपाइलर है, जावा वर्चुअल मशीन नहीं होगा, क्योंकि जावा एंड जावास्क्रिप्ट बोथ आर दी डिफरेंट लैंग्वेज, दोनों अलग है। जावास्क्रिप्ट हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था, एंड जावा आप लोगों ने उसके बाद पढ़ा। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट अलग लैंग्वेज है, जावा इज अलग लैंग्वेज। ठीक है, तो जो लैंग्वेज आप लोग यूज करोगे यहाँ पे, वो लैंग्वेज का कंपाइलर, क्योंकि यहाँ पे इसीलिए वर्ड यूज किया हुआ है लैंग्वेज कंपाइलर। यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया हुआ है? लैंग्वेज कंपाइलर। ठीक है, तो जो भी लैंग्वेज, इफ एनी लैंग्वेज यू आर यूजिंग, जो भी लैंग्वेज आप लोग यूज करें, वही लैंग्वेज का कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा आपके सोर्स कोड को MSIL में कन्वर्ट करेगा। ओके, एंड जस्ट इन टाइम कंपाइलर जो है वो कन्वर्ट करेगा MSIL कोड को नेटिव कोड मशीन कोड में। ओके, इजी है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट दिस C# लैंग्वेज। हम लोग बेसिक स्टार्ट .NET में आपको इतना ही पढ़ना था कि व्हाट इज .NEट फ्रेमवर्क। ठीक है, .NEट फ्रेमवर्क में हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन से टाइप्स के एप्लीकेशन वी कैन क्रिएट, कौन सा टाइप का लैंग्वेजेस वी कैन यूज। ओके, जो लैंग्वेजेस हम लोग यूज करते हैं उसका आउटपुट कैसे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, ये बेसिक ही हमको पढ़ना था। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ CLR। ठीक है, ये बेसिक्स हमको पढ़ना था। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 1 का जो चैप्टर 1 जो है .NEट फ्रेमवर्क, तो .NEट फ्रेमवर्क यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो उसके जो क्वेश्चंस, ओके, मैंने आपको PDF नहीं सेंड किया ना, मैम ने आपका क्रिएट किया है क्या गूगल क्लासरूम? मैम नाहिद मैम ने की है मैम। ओके, TY का, मैम सरस्वती मैम ने नहीं किया।
नहीं किया, ठीक है, मैं देखती हूँ, पूछ के देखती हूँ क्या है वो, देखती हूँ कि उसमें ना ये पीडीएफ आई विल पोस्ट दैट क्वेश्चन बैंक वाला पीडीएफ। तो आप क्या करोगे, डिटेल में नहीं लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि आप